जी एक टूल है otter.ai। ठीक है। तो आज हम थोड़ा ना एआई बेस्ड टूल्स के ऊपर कुछ काम करेंगे। दे आर यूज फॉर द प्रेजेंटेशन, फॉर द राइटिंग, फॉर मेकिंग ग्राफिक्स। ठीक है, तो उनको जरा देखते हैं और प्रोबेबली कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप बताएंगे। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो ऑटर ऑटर OTTER ऑटर.ai ये एक टूल है जो कि जूम के साथ या किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के साथ लिंक हो जाता है और आपके नोट्स बना देता है, उसके मीटिंग मिनट्स बना देता है। ठीक है, तो आपको उस पर वो असिस्ट कर सकता है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिंक इट विद द जूम मीटिंग विच वी हैव टुडे। सो जैसा भी ये रिकॉर्ड योर फर्स्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट की बात कर रहा है, तो वी कैन जस्ट स्टार्ट इट। So try just trying to see how to link it with my Zoom. I think it is. Get started. Okay, start. This is such. Say a few words I got about Otter from. Okay, leave it. Add a highlight. Okay. Think that you. Tutorial complete. Connect your Zoom account so note taker can manage your host. Okay, connect. May not be safe. Leave site. Leave. So we are aligned. You're about to add Otter.ai to the Zoom meeting. So certain things कुछ ना कुछ होगा। Successfully connected the Google account। ठीक है जी। So, I think it has been added to the Zoom session if I'm not anything wrong. Meeting. Meeting link। So, screen। तो जो Otter.ai का फ्री वर्जन है ये 300 मिनट तक काम करता है 1 महीने के लिए। और प्रोफेशनल वर्जन जो है फिर वो अनलिमिटेड एक्सेस दे देता है। मैं इस रिमोट से इसको अगर आप कनेक्ट कर सको तो आपको ये। So I think now it has started linking with the Zoom. You get 30 minutes of transcription per conversation and we can upgrade, but it's just a learning experience. So I'm just trying to
why not use this tool to make notes of whatever we talk on the वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो जिस तरह आप कोई बात किसी से कर रहे होते हैं, किसी मीटिंग में बैठे होते हैं और आपकी डिस्कशंस चल रही होती हैं बहुत सारे लोगों की, और उसमें आप चाहते हैं कि ये कोई एक शख्स बैठ जाए और वो नोट बनाए कि जी क्या बातें हुई हैं, ताकि उसके बाद कोई इस पे कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई डिसीजंस हुए हैं, तो वो कम्युनिकेट किए जा सके टू अदर पीपल। So for that matter, this tool can be utilized. It is just like your personal assistant. It will link with the video conferencing tool, um, and sometimes without it as well. You just open it on your system. Even there is no video conferencing, it will be just there to record your conversation and make notes. And later on, you can ask for the summary, you can ask for the important points which are discussed within that meeting. So let's see how effective is it. Just for the experimentation sake, we'll do it today. So I've just linked my account with the with this tool, and we are doing our regular discussion on the Zoom session. So session is about use of various AI tools which can assist in writing, in presentation, in graphics. So उस perspective से we are just I've just linked it. आप भी इसको I would also request you guys as well कि आप भी जरा इसको experiment करें, इसके साथ जाके देखें। अगर अभी आपके पास systems हैं तो उस पे आप इसको एक दफ़ा open करके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो you see every note is being recorded. A bit slow in processing because it's using its own server, because whatever I'm talking, it's going to some server, being filtered, being recorded, being written, and then it is being shown on the screen. So every tool is just like client server model, sort of client server model. I'm the client here. There could be many clients which are talking. We talk. We link to the concerned server. Our communication. We make a four-way handshake, TCP/IP protocol के through, and then things start doing with for us. It connects to the server, and then start responding to our queries. Right. So you see, it is doing the same for me, and once we complete the 30 minutes, we'll see the results, whether it is as per our expectation or there is something which requires improvement. But the purpose or the aim is very good. That instead of having somebody sit in a meeting and record minutes, there should be some automatic tool which should be able to record the lecture, should be able to record that conversation, and then it is available to the audience later on for any revaluation, rethinking, or maybe for issuing certain minutes of that meeting. So this tool is called Otter.ai, right? So इसको अगर आप एक्सप्लोर कीजिए अपने एंड के ऊपर, ठीक है। और आई होप ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो मेरी बात सुन पा रहे हैं। साजिद एंड इकरा, कैन यू लिसन टू मी? Yes, sir. जी जी सर। And the screen is also visible to you, which is recording whatever I'm talking. सर Yes, sir. सर विजिबल सर। Okay, so what I'm requesting that you should also try figuring it out at your end. Open it maybe and see. There must be some tutorial on its usage and some of the explanations, introduction to the tool. Go and see how you can use it for your purpose if it is required. So this is one of the tool which we use. I find it interesting, so I'm just showing it here. And let me now see some other tools as well, which we can utilize and are of more usage to us. Okay, अगर ये आपको टूल की समझ आ गई है तो हम कुछ और भी इसमें अब देखते हैं कि क्या चीज़ और देखी जा सकती है। Okay, so let me open a presentation first where I've listed down these tools, and then I'll start opening it one by one.
प्रोबेबली इट इज रिकॉर्डिंग इन रोमन उर्दू एज वेल। और हम देखते हैं, विल सी द रिजल्ट्स, इट्स ऑन एंड विल सी आफ्टर 30 minutes व्हाट इट प्रोड्यूसेस फॉर अस। Experimentally we can observe that. So next is these are the productivity tools, right? So next tool is the Canva, which is a design tool for reports, infographics, and presentation. I'm showing it. Just मैं आपको वैसे नोट करवा रहा हूँ कि Canva is the second tool and we'll open that. कि वो क्या करता है और कैसे यूज करता है, एंड आई बी एक्सपेक्टिंग यू गाइज एज वेल कि आप अपने लैपटॉप्स के ऊपर थोड़ा साथ साथ देखते भी जाएं, खोलें उसको, ताकि यू कुड ऑल्सो बी ऑफ, मतलब उसको आप एक्सपेरिमेंटली अभी बाय हैंड कुछ ना कुछ ट्राई करें, एंड आई गिव यू अ स्मॉल एक्सरसाइज एज वेल टू डू। इनफैक्ट आपकी कोशिश ये होनी है कि जो आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हैं या जो आपकी थीसिस प्रेजेंटेशंस हैं या आपकी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस हैं, वो उन टाइटल्स को, उन आइडियाज़ को आप यहाँ पे इन टूल्स के थ्रेड कुछ रिफाइन करने की कोशिश करें। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक एआई टूल्स के पर्सपेक्टिव से है, जो कि हम सबको जहन में रखनी चाहिए, कि एआई टूल्स आर देयर टू असिस्ट अस, they can improve our efficiency, right? They cannot replace us. In any case, the intellect to these tools has to be given by me and you. They will be helping us out, और ये किसी न किसी तौर पे पहले भी मौजूद रहे हैं, ये किसी न किसी और सूरत में आपको इन टूल्स के परफॉर्मेंस से अंदाजा भी होगा कि यार इस तरह की सिमिलर चीज मैं किसी और जगह पे किसी और तरीके से करता भी रहा हूँ या मुझे अवेलेबल रहा है, लेकिन शायद वो उतना एफिशिएंट उस वक्त नहीं था। अब एफिशिएंसी थोड़ी थोड़ी ऐड हो रही है सिस्टम्स के अंदर, और ऐड होगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये कि स्टिल ह्यूमन बीइंग विल बी देयर टू डू नंबर ऑफ थिंग्स। तो उस पर्सपेक्टिव से हमने इसको देखना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं एक स्लाइड यहाँ पे और भी दिखाना चाहूँगा, जो कि आई मेक इट फॉर राइटिंग प्रपोजल्स। क्योंकि जब आप प्रपोजल्स लिखते हैं डिफरेंट जगहों पे, जिनको हम प्रोजेक्ट प्रपोजल्स कहते हैं, तो वहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा यूजेज बढ़ चुका है एआई टूल्स का, क्योंकि आसानी है ना। तो आसानी तो है बिल्कुल, और आसानी को इस्तेमाल भी ही करना चाहिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमने देखनी होती है, वो मैं आपको ज़रूर इसमें बताना चाहूँगा। और लेट मी सी दैट प्रेजेंटेशन, दैट स्लाइड हेयर एज वेल विद एवरीबडी। और उसके बाद हम टूल्स पे दोबारा आ जाते हैं, और वो है ये स्लाइड कि आई होप ये विजिबल भी सबको हो गई होगी, और यहाँ भी नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छा जी। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं ना, तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो जज की जाती हैं फ्रॉम दी वैल्यूएटर्स परस्पेक्टिव, वो ये कुछ 5 चीज़ें हैं। यानी आपके काम की फिनिश देखी जाती है, शॉर्टकट में अगर एब्रीविएशन हम यूज़ करें, कि क्या वो चीज़ जो आप प्रपोज कर रहे हो फीजिबल है। फिजिबिलिटी पे फोकस रखा जाता है, इसकी ग्रेडिंग होती है कि इट्स फीजिबल। इसका इम्पैक्ट है कोई इस काम का, क्या ये सिविल सोसाइटी को अफेक्ट करेगी, क्या ये आपके माशरे में कोई पॉजिटिव रोल प्ले करेगी, कुछ लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, कहीं जॉब में चीज़ें बढ़ेंगी लोगों की, उनकी कोई उनका लाइफ साइकिल या लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करेगा, लोग जो हैं वो खुश हो जाएंगे, खुशी बढ़ेगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट के। तो वट एवर प्रपोजल यू आर डूइंग, दैट इज इन फॉर अस दैट कुड बी अ रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल। सो प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है इम्पैक्टफुल होता है, तो उसके वेटेज है, आप यू कैन से कि ऑल ऑफ दीज हैव गॉट 20% ईच, इक्वल वेटेज। सो इफ इट इज फिजिबल, फिजिबल मीन्स के वाकई ये किया जा सकता है, ये कोई बड़े बड़े दावे नहीं कर रहा, बल्कि ये प्रैक्टिकल चीज है। आइडियलिस्टिक बातें नहीं कर रहा, प्रैग्मेटिक बातें कर रहा है, तो इस चीज को देखा जाता है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें कि जो आपके टूल्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते। वो आपको एक मैकेनिकी जवाब तो देंगे, बट ये कि ये चीजें आपकी जजमेंट कॉल पे आती हैं। खैर, दोबारा भी आते हैं, इम्पैक्ट देन नीड।
क्या इस काम की जो आप कहना चाह रहे हैं इसकी वाकई ज़रूरत भी है, हमारे माशरे को, हमारी सोसाइटी को, हमारे मुल्क को? इसकी एक एवेल्यूशन की जाती है। आपका आइडिया इनोवेटिव है, इट इज़ समथिंग विच इज़ जो कि बहुत कोई घिसा पिटा आइडिया नहीं है, या बहुत ज़्यादा ऑलरेडी चीज़ अवेलेबल ही नहीं है कि अब वैसे आप कह रहे हैं जी मैंने एक वॉशिंग मशीन बनानी है, तो वॉशिंग मशीन है 100 किस्म की ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आपकी वॉशिंग मशीन में क्या इनोवेशन है, वो अगर आप हाईलाइट कर पा रहे हैं प्रॉपरली और विजिबल है, तो उसकी वेटेज जो है वो डेफिनेटली फिर दी जाती है। एंड देन जो आप बात कर रहे हैं वाकई साउंड है या नहीं है, यानी इसका ताल्लुक क्या कहें कि बहुत हद तक रिलेशनशिप है विद द फिजिबिलिटी। या फिजिबल और साउंडनेस, टेक्निकली साउंड है, टेक्निकली बात ठीक कर रहे हैं, क्योंकि बाज औकात कुछ लोग ऐसी बातें भी करते हैं जो शायद फिजिबिलिटी तो उसकी हो रही होती है, लेकिन वो टेक्निकली ठीक नहीं होती। यानी वो बात जो कर रहे होते हैं कि हम जिस टाइम पीरियड में करना चाह रहे हैं कर लेंगे, लेकिन टेक्निकली गलत बात कर रहे होते हैं। सो टेक्निकल साउंडनेस इज अनदर थिंग। सो ये इनके जो एब्रीवेशंस बनती है वो फिनीज बनती है। तो वेन एवर यू राइट यू शुड फोकस ऑन दिस एवरी दिस एक्रोनिम, आई वुड से कि मैंने ये काम करना है। लेकिन जो इसमें इन सब चीजों को ओवरवेलम कर रहा होता है इसके अंदर, वो है आपका पर्सनल एंड इमोशनल टच। Because a machine would be able to give all these things to some extent. Your AI tools, they would be able to help you in making these things. वो आपको शायद कुछ फिजिबिलिटी भी दे दें, इम्पैक्टफुल भी, इम्पैक्ट के पर्सपेक्टिव से भी कोई बात लिख दें, नीड एनालिसिस भी ठीक कर दें, इनोवेशन भी आपको हाईलाइट कर दें। लेकिन ये कि इस सब के अंदर एक जाती टच आना जो है वो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक इंसान खुद अपना रोल प्ले ना करे। इसलिए अभी टूल्स जो है वो जा रहे हैं टुवर्ड्स ह्यूमन टच। एवरी एआई टूल इज बीइंग फर्दर मॉडिफाइड, फर्दर इम्प्रूव्ड टू गिव ह्यूमन टच, राइट? और वो किस हद तक उसमें सक्सेसफुल है, वो एक क्वेश्चनेबल मार्क है। अभी स्टिल इट इज नॉट दैट सक्सेसफुल। सो इस पर्सपेक्टिव से जो है ना वो हमने जजमेंट कॉल देनी है। अब इसमें जो एक और चीज़ मैं बताना था जो कि हमें देखनी चाहिए, वो ये है कि जो जेन आई है आपके पास नाउ, वट एवर टूल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दे आर सॉर्ट ऑफ जनरेटिव एआई बेस्ड टूल्स, और इनको हम नाम देते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स। ठीक है? दे आर नॉट प्रिडिक्टिव टूल्स, दे आर दी natural language processing tools. They would be working on your input. You will give them some prompt and they will respond on that prompt based on their database which have been given to them for training. So उस perspective से Gen AI tools जितने भी हैं, there are many. One of the most famous is ChatGPT, जिसका वर्जन 4.0 प्रोबेबली इस वक्त लेटेस्ट वन है, और फ्री नहीं है, कुछ उसमें लिमिटेड फीचर्स हैं जो एक्सेस हैं। अगर आप पैसे पे करें अराउंड $20 हैं, तो वो आपको फिर पूरे फीचर्स दे देते हैं, जिसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। फिर चैट जीपीटी के कंपटीशन के अंदर आपने डीप सीक का नाम सुना होगा, और फिर आपके पास गूगल का एक और वर्जन, ये माइक्रोसॉफ्ट का है जेन एआई जो है, यानी जो चैट जीपीटी है। फिर आपके पास इनके कंपटीशन में फिर मुख्तलिफ जो बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने अपने अपने टूल्स बनाए हुए हैं। तो को पायलट भी एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट का। और फिर आप आ जाते हैं तो आप जेमिनाई जो कि गूगल का है उस टूल पे आ जाते हैं। फिर आपके पास डीप सीक है जो कि चाइनीज कंपनीज के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ हुआ। तो दीज ऑल आर दी सम ऑफ द फेमस जनरेटिव एआई टूल्स। कुछ टेक्स्ट बेस्ड हैं, कुछ इमेज बेस्ड हैं, कुछ वीडियो बेस्ड हैं, कुछ ऑडियो बेस्ड हैं। तो उनमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आज देखते भी हैं और उनको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि वो क्या किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि ऑल ऑफ दीज टूल्स दे आर बेटर फॉर द ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड स्ट्रक्चरिंग योर कंटेंट। दे विल हेल्प यू इन डूइंग दीज थिंग्स। हो सकता है कोई चीज आपके दिमाग में ना आए फौरन, और ये आपको वो आइडिया दे दे बिकॉज इसका डेटाबेस बहुत बड़ा है। तो उस हवाले से आप जरूर इनको इस्तेमाल करें। जब आपने इसको एक चीज दे दी है और आप उसको ठीक तरीके से एक फ्लो में डाल नहीं पा रहे, या आपको उसका एक अच्छा फ्लो बना देगा। सो इन हवालों से तो ये अच्छा है, लेकिन देयर आर मेनी रीजंस फॉर, जो कि जहन में हम सब ने रखनी है, जिनकी वजह से देयर आर थिंग्स व्हिच आर रिस्की एज वेल, और वो मैंने यहाँ लिस्ट डाउन की हुई हैं, अगर आपको नजर आ रही हो। नंबर वन, तो पहली चीज तो ये है कि जनरली स्पीकिंग देयर आउटपुट इज जेनेरिक, राइट? The flow or the sequence of ideas is generally speaking not very logical most of the time. जेन्युइन इनोवेशन और डेप्थ जो है वो नजर नहीं आती, थोड़ा लैग कर रहा होता है। जिसके लिए अब जेन एआई के अंदर एक और टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया, इसको हम नाम देते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, कि भी
we should be knowing how to appropriately ask the question, because every question will not give us the right answer. So we need to improve upon our writing or asking the questions कि क्या question पूछना चाहिए हम, फिर we probably will get better answers. So एक तो ये चीज़ है हमारे होनी चाहिए. फिर ये कि because this is trained on some data and it has been told to respond whether it knows correctly or probably incorrectly, because the designer may decide to answer you in any case just to I would say to keep the user within his or her grab कि वो available रहे. So there are many times you will find inaccurate or fabricated information. The references will not be always correct, although they are improving and things are now on the right path. But if it happens, then it will damage the reputation of the writer because you are using it. So if you will show it and it passes the AI plagiarism and it goes to a reviewer. So reviewer, if he or she finds that information given is not accurate, so automatically उससे पता चल जाएगा कि ये फैब्रिकेटेड टाइप कुछ चीज़ है, तो ये किसी और को इस्तेमाल करके ही बनाई गई होगी, क्योंकि इंसान जो है वो नेचुरली अननेसेसरी चीज़ फैब्रिकेट नहीं करता जब वो सीरियस होता है. तो वो लाशऊर के तहत अगर करेगा तो कर सकता है, लाशऊरी तौर पे उस वक्त ही करेगा जब उसने खुद ना किया हो, किसी से करवाया हो. तो ये आपकी फिर डैमेजिंग इफेक्ट एक आ सकता है इस पर्सपेक्टिव से, तो इसको देखना ज़रूरी है और इस पे होमवर्क करना चाहिए आपको. और समटाइम्स जो आप से आपने फंडिंग अप्लाई किया तो दे इट मे नॉट बी एग्जैक्टली गिविंग यू द अलाइनमेंट विद दैट फंडिंग अपॉर्चुनिटी, इट विल बी गिविंग अगेन जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन. सो अगर आपको ये अप्रोप्रिएट प्रायोरिटीज के मुताबिक चीज़ नहीं बना के दे रहा या असिस्ट नहीं कर रही चीज़, तो इट विल अगेन decrease your chances of approval because people will come to know that this is something fabricated. So effort actual नजर नहीं आएगी तो फौरन ही हाईलाइट हो जाएगी. एथिकल कंसर्न्स अगेन, क्योंकि प्लेजरिज्म यहाँ पे शो हो सकता है अगर आपने बिल्कुल ही दिमाग में ख्याल नहीं रखा और आपने उसको एज इट इज सिर्फ देते गए और वो आपको जवाब देता गया, तो अगेन इट विल क्रिएट एथिकल कंसिडरेशंस विच विल अगेन डैमेज द रेपुटेशन ऑफ दैट राइटर. और फिर उसके रिपरकशंस हैं काफ़ी सारे अगेंस्ट पैचेसी की. एक जो प्लेजरिज्म पॉलिसी है स्पेशली जेन आई टूल्स के लिहाज से एक आई भी है, वो आई शेयर विद यू, जिसके अंदर काफ़ी डिटेल में उन्होंने बात की है कि किस तरीके से जेन एआई को यूज़ करें. जेन एआई को यूज़ करने पे कोई पाबंदी नहीं है, करना चाहिए. इट इज़ अ पॉजिटिव आई वुड से टूल. बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं ये लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं ये जूम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, या अगर से मैं इमाम मस्जिद हूँ तो मैं माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिकॉज इफ आई डू नॉट यूज इट तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मैनी थिंग्स. अगर से 100 लोगों से मैंने बात कर ली और मैं कहूँ जी मेरी आवाज़ बड़ी सुपर ह्यूमन है और मैं 100 लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी, तो ये खाम ख्याली है, ठीक नहीं है ना. तो मुझे वो टूल इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए. तो ये टूल भी यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है, बट अगेन टूल शुड बी यूज्ड विद अ व्यू कि आई शुड अनाउंस कि मैं इस टूल को इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं कि एथिकल यूज़ आप कर रहे हैं, एंड यू अनाउंस इट. इफ़ यू फाइंड आउट कि जी मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा है जिसमें मोस्टली मेरे इस टूल ने असिस्ट किया, तो मेक दैट टूल एज योर ऑथर, आप उसको लिस्ट डाउन करें. एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप सर्च करें कुछ ऐसे रिसर्च पेपर जिनमें जैन एआई के नाम लिखे गए हैं, लोगों ने लिखा है कि जी मैंने पेपर जैन डॉट एआई को इस्तेमाल किया एज अ टूल या एज अ ऑथर मेरे पास इंक्लूडेड है, या चैट जीपीटी मेरे पास ऑथर है, आप इसको जरा अपने स्मार्टफोन पे जरूर सर्च करें एंड शेयर दी स्क्रीन शॉट्स विद मी. अभी इसको साथ साथ आप बेशक एक दफ़ा ज़रूर करें ताकि ये भी आपको अंदाजा हो कि दुनिया में ये चीज़ लोग अब कर रहे हैं, करना शुरू हो गए हैं. तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम जो छुपाएं किसी चीज़ को. अगर आपने इस्तेमाल किया है, अल्टीमेटली दिमाग आपका बीच में है, आप उसके अंदर एक टीम मेंबर हैं, आपकी टीम का एक मेंबर एक टूल भी है, तो उस टूल को अनाउंस करने में कोई बुराई नहीं. एंड दैट गिव्स यू मोर रिस्पेक्ट इफ यू टेल इट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जी आई हैव यूज्ड इट. सो प्रॉब्लम सिर्फ जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि दीज टूल्स विल बी लैकिंग इन पर्सनलाइजेशन एंड ह्यूमन टच. दिस इज द थिंग विच शुड बी केप्ट इन माइंड. So because you will not find any passion in them, any related experience or commitment, because as a human you own that thing more than any tool. Tool is doing this job for
millions of people, so it cannot own those millions of ideas. It will always be generic in their representation, जितना भी अच्छा हो जाए। तो वो जो एक स्पेशल टच आना है आपका, आपकी चीज के हवाले से, वो आप ही ला सकते हैं। तो ये फिनोमेना जहन में रखते हुए आप इनको इस्तेमाल जरूर करें, और जहां पे इनका इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे इनको आप अनाउंस करें। ठीक है। तो ये मैं इस पर्सपेक्टिव से आई वांटेड कि ये आपकी नॉलेज में हो, और नाउ वी कैन नाउ गो बैक टू दी टूल्स एंड देन यूज इट, एंड कि हम किस तरह से क्या फायदा उठा सकते हैं। चलिए। ओके। सो ऑटर इज स्टिल recording our notes, I think it is doing something, but let's see कि ये कितना effective है, हम इसको बाद में देखेंगे। 30 मिनट्स तक इसका रोल है। तो now let's move on to the second tool, and I told the name is Canva। ठीक है। Canva again, इसमें mostly tools ऐसे हैं जो कि आपको नजर आएंगे कि they have some basic version which is available as free, and of course क्योंकि किसी ने बनाया है तो वो they would be interested to give full features to the person who is paying them. So sometimes you may ask, may get that सीरीज वगैरह से जनरेट करते हैं। आप सीवी ये देखते हैं ना कैनवा में और क्या क्या हो सकता है। सो इट्स अ डिजाइन टूल फॉर रिपोर्ट्स, इन्फोग्राफिक्स एंड प्रेजेंटेशन। इट्स अ वेरी फेमस टूल। इसका प्रोफेशनल वर्जन सेपरेट है, और इसका बेसिक वर्जन भी है। हम उसमें से खोल के देखते हैं उसको। लेट मी शेयर इट विद द क्लास एज वेल। ओके। शेयर शेयर द स्क्रीन। गूगल को हम शेयर कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको बुकमार्क्स में जाके, let me open the Canva home। Let's see कि ये हमें क्या दे रहा है। Okay, so it is saying start my free trial। Okay, let's do that। And अभी ये मुझसे कह रहा है कि अगर आपने इसका प्रो वर्जन लेना है तो आप इसका तकरीबन $6, $6.5 मंथली खर्चा है, जो कि इन सम केसेस नॉट वेरी मच। तो अच्छा, गेट योर फ्री ट्रायल। स्टिल इट्स आस्किंग मी क्या मुझे जो ना क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग दैट इंफॉर्मेशन प्रोबेबली। इसको हम करते हैं क्लोज यहाँ से, एंड सी दिस। सो दिस इज द कैनवा फ्रंट एंड। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शन नजर आ रही होंगी यहाँ पे विजिबिलिटी में। मैं यहाँ लिंक करूँ, एक मिनट इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। ओके। तो आई रिक्वेस्ट कि आप भी अपने सिस्टम्स पे इसको खोलें, और वी कैन ऑलवेज सी इट। सो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये आपको बहुत सारी ऑप्शंस दे रहा है यहाँ पे, कि कोई डॉक्यूमेंट बनानी है, कोई वीडियो बनानी है, कोई वेबसाइट के पर्सपेक्टिव से आपने प्रेजेंटेशन, कोई वाइट बोर्ड। सो इनमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट लर्निंग जस्ट लाइक अ गेम, एंड प्रोबेबली समथिंग कुड कम अप। सो से अगर हम यहाँ पे कोई एक प्रेजेंटेशन खोल लेते हैं कि जी ओके, these are the projects which I made। so इसने यहाँ पे उसको शो किया, बट आई जस्ट गो बैक टू द होम एंड से मैं कहता हूँ जी कि ओके, कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया, एजुकेशन, वीडियो, वेबसाइट। सो किस चीज़ को खोला जाए जी? डॉक्यूमेंट को खोला जाए, या लेट्स सी, क्योंकि आपसे रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट अगर आप बनाना चाह रहे हैं, या उसकी प्रेजेंटेशन पे आप काम करना चाह रहे हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या असिस्ट यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं इसके डॉक्यूमेंट को खोलता हूँ एंड सी के व्हाट ऑल इज पॉसिबल हियर। सो ठीक है जी। तो नाउ इट इज शोइंग मी अ ब्लैंक पेज। The secret of getting ahead is getting started। So okay, fine, right। तो क्या किया जाए जी यहाँ? Should we see some से हम एक हेडिंग डालते हैं कोई, फॉर एग्जांपल
try to, it's giving me some templates, उसे हमने टेम्पलेट यूज कर लिया, उसके कलर स्क्रीन उसने मुझे सजेस्ट कर दिए, ठीक है। और ओके, चलिए इसको हम सेव कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट में कुछ खूबसूरती वगैरह लाने के लिए पर्सपेक्टिव से इट स्टार्टेड ऑफ, सो व्हाट एल्स वी कैन डू, से हेडिंग तो हमने डाल दी है एंड देन वी ट्राई टू इंक्लूड द बॉडी। ये और क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर, we have subheadings, divider, page break, checklist, etc. So it's just like a Word document, bar chart, pie chart, आपने कुछ इसमें, so it is trying to create a beautiful document for us, ठीक है, something which is attractive to the reader. So it's more of the look of that document in which it will help us with number of things. So say मैं इसकी document की body को ही place करता हूँ, से यहाँ पे if I start writing, um, what we can do, we can say time frequency analysis of 2D signals are an important area applicable to many researchers. For example, this I've written. And I can keep writing, and ultimately it will create some document for us, and we have the editing tools upside on this, उसको हम use कर सकते हैं। Magic write means कि अगर if I would like to ask something from the say I would like to take a case study, so it will write for me। इसने मुझे खुद कुछ एक दिया हुआ है, बट इफ आई से मैं इसमें से करता ये हूँ कि आई क्लियर एवरीथिंग एंड आई राइट माय ओन importance of time frequency analysis. I would like to add this to my document, so it will generate, and now I can say decide कि मैंने इसको अपने इस document में insert करना है, so I just enter, it will add it here। So okay, this may be of something, कुछ मतलब इसमें कुछ चीज़ में मेरे काम की नहीं है, I can just delete that क्योंकि if you do not want to go to the conclusion right now, I can just delete it। So in this way, I can just add, delete, and I can make my document. And there are tools which are there to assist me on writing this document. I can make it, इसमें खूबसूरती अपनी मर्जी से आप ला सकते हैं, इसके एलिमेंट्स ऐड डिलीट कर सकते हैं, कलर्स डाल सकते हैं, हेडिंग्स डाल सकते हैं, तो ये एक डॉक्यूमेंट आपके पास बनेगी और उसको अल्टीमेटली फिर आप सेव कर सकते हैं। सो वी कैन गो फॉर can save it, it's already saved, I can share it। Yeah, I can share it with, it is trying to check my account, so say मैं इसमें, साथ आपका क्या अकाउंट है, कोई एक बता दो। isp.edu.pk, ओके। तो ये थोड़ा सा मुझे कुछ लिमिटेशंस देगा बिकॉज इट्स अ बेसिक वर्जन, सो समथिंग लाइक दिस, हाउएवर लेट्स सी व्हाट इट शेयर्स टू मी। तो नाउ इट इज आस्किंग मी क्या उसमें और बहुत सारे काम करें। खैर हम इन डिटेल्स में नहीं जाते हैं, जस्ट अ टूल जो कि हमें शायद एक अंदाजा होना चाहिए कि जी कैनवा को हम यूज़ कर सकते हैं। देयर आर मैनी अदर थिंग्स फॉर विच दिस कैनवा टूल कैन बी यूज्ड। से वी गो
back and go to the probably home, और हम यहाँ पे किसी प्रेजेंटेशन को बनाना चाहते हैं तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं प्रेजेंटेशन भी, और अकॉर्डिंगली इट कैन असिस्ट अस इन मेकिंग द प्रेजेंटेशन एज वेल। इस दौरान देखते हैं कि व्हाट ऑटर हैज़ डन। ऑटर अभी स्टिल इज इन प्रोसेस। आई थिंक इट हैज़ स्टॉप्ड और इट इज़ डूइंग समथिंग। ये हमारे पास इस वक्त हाईलाइट करना चाहते हैं हम, तो ये हाईलाइट भी इसको कर देगा। हाईलाइट टूल कैन बी यूज्ड। कुछ कमेंट करना चाहें कमेंट भी कर देगा। ओके, इमेजेस ऐड करना चाहे, खैर ये वी आर जस्ट मेकिंग इट। ये इसको वंस वी स्टॉप probably then it will create certain things, तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ stop recording. So I have stopped recording Otter. It will now give me the transcript of entire talk जो मैंने start से लेके आखिर तक बात की है, ठीक है। So it has now given me the with timings whatever we have taught. So it's I don't know कितना ये accurate है कितना ये accurate नहीं है, but it's the effort in the right direction because it is a useful tool, and of course some people would like to, so it's doing something still, let's see ultimately क्या जनरेट करता है, बट ये एक टूल हमने देख लिया। सिमिलरली ये हमने कैनवा के परस्पेक्टिव से देखा। कैनवा भी अगेन इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डॉक्यूमेंट एडिटिंग भी है, और हमारे पास अब ये प्रेजेंटेशन परस्पेक्टिव से भी इसमें आपने कोई चीज़ डालनी है, वीड लाइक टू ऐड से सम डिज़ाइन, सो हमने इसे इस तरह की बात करनी है तो ये इसके अंदर उस डिज़ाइन को भी ऐड कर देगा। थोड़े से ये क्योंकि इंटरनेट के कनेक्शन पे भी डिपेंड करता है, तो समटाइम्स इट विल टेक सम टाइम टू प्रोसेस एट योर एंड, एंड सर्टेन थिंग्स प्रोबेबली विल नॉट बी अलाउड बिकॉज इट इज़ आस्किंग मी कि आप ये मुझे इतने पैसे पे करें तो मैं आपको ये इफेक्ट देता हूँ। तो ये दिस इफेक्ट प्रोबेबली इज ओनली फॉर द प्रो वर्जन, ये इसमें अवेलेबल नहीं हो रहा। बट ये कि ऑफ कोर्स टेक्स्ट टाइप चीज़ कुछ सिंपलर चीज़ें यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, जैसे लाइक टू ऐड हेडिंग या लाइक टू ऐड सब हेडिंग। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ आप ऐड करके इसके अंदर अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एंड अगेन द प्रेजेंटेशन प्रोबेबली वुड बी इन अ बेटर शेप, ज़्यादा खूबसूरत लगेगी बनस्बत एक नॉर्मल पीपीटी प्रेजेंटेशन की। अब इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, एनिमेशंस इफेक्ट्स ये सारे इसने ऊपर मेंशन किए हुए हैं। लाइक से मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है 5G कम्युनिकेशन के ऊपर। 5G networks, so it will just then I can do certain things। इसके अंदर ये मुझे ऑप्शंस दे रहा है कि इसको कुछ आपने शॉर्टन करना है। इट विल गिव मी एन ऑप्शन कि मैंने एक वर्ड लिखा और वो वर्ड शायद इतना अच्छा नहीं है, इट कैन गिव मी ऑप्शंस, बट यहाँ पे चूंकि ये सिंपल सा वर्ड है तो इट विल बी नॉट डूइंग मच। बट ये कि आई कैन ऐड सर्टेन थिंग्स, आई कैन do lot of things. So here for example importance of 5G networks, you can just and probably इसकी शायद मेरी जरूरत नहीं है, I can delete it। यहाँ पे हम नंबर 1 पहला है फॉर एग्जाम्पल हाई स्पीड लो लेटेंसी, समथिंग लाइक दिस। तरह से अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकते हैं, और इसको यू कैन देन ऐड स्टार्ट एडिंग योर स्लाइड्स, and ultimately that can be used, you can share it with people and present as well, so like if you want like to present here it can present for you, so it is there, and number of tools के इसको आप present करें। okay, so this is Canva। ठीक है जी, तो Canva is again as per your comfort, आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल करें। आई होप ये ऑनलाइन भी विजिबल है सबको, यही सेम स्लाइड हाँ विजिबल है। ठीक है जी।
So Canva is another one. Again, go back to their home. So इस पे और बहुत सारी चीज़ें हैं. Again, it depends upon directly social media से भी लिंक कर सकते हैं इसको आप, और वीडियोस क्रिएट करनी है, वेबसाइट्स बनानी है. बट अगेन इट हैज़ गॉट इट्स ओन लिमिटेशंस इन द बेसिक वर्जन. सो ये फॉर मी इट इज़ नॉट दैट इफेक्टिव फॉर अस. कैनवा जो है, मतलब देर आर सम अदर टूल्स जो कि शायद ज़्यादा अच्छे हैं, मैं उनके ऊपर बाद में आता हूँ. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड टूल, another one, which is gamma dot app. gamma dot app, देखते हैं अब gamma dot app क्या चीज़ है. So we go here. I open the AI tools. Gamma. Gamma dot app. So let me share it with the with others as well. Share screen now. Gamma. Share. So again, now this is another tool which is mm, for the purpose of many things. Again, help इसकी जो help है उसको खोल के further explore किया जा सकता है कि how it can be utilized. So primarily it is for the presentation purposes. जिसका मेन एम है gamma डॉट ऐप का, इट क्रिएट्स प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट्स यूजिंग एआई. ठीक है. सो say if I've made this presentation. So it is a presentation which I've made. It is code of conduct for online synchronous program, for example, at some university. So this I made using this tool. तो मैं इसको यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा तो ये इसको दिस प्रेजेंटेशन इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड. आई जस्ट गिवन द टेक्स्ट टू इट एंड इट आई आस्क्ड इट टू कि आप उसकी मेरी प्रेजेंटेशन बना दें. तो इसने मुझे एक प्रेजेंटेशन बना दी है. ठीक है. सो इट हैज़ नाउ यू कैन सी कि ये वन आफ्टर द अदर दैट entire text has been converted to a presentation with the appropriate pictures by itself. I have not done anything, so I can just present it. So sometimes it saves a lot of time. Although इसके अंदर हमें अपनी इंटेलिजेंस डालनी पड़ती है. It will not be making it very accurate sometimes. So, but yeah, it saves time for us. And sometimes you would be happy to do it. Okay, automatically it will generate the graphics for you from the text, और ultimately आपको ये help करेगा in making your. ठीक है जी. So if you find it okay, but again depends upon the person to person. So मैं इसको exit करता हूँ यहाँ से. And I go back to the home. And home के ऊपर जब आप जाते हैं तो now you can create with the help of AI. You can create from new as well yourself. So we go back to the templates.